Assalamualaikum. Topic of discussion today is adrenal gland, its pathologies, and anesthesia management in adrenal pathology. We will study about anatomy and physiology of adrenal glands, pathological disorders of adrenal glands, and their anesthetic management. Pathological disorders are glucocorticoid excess, mineralocorticoid, adrenal insufficiency, and pheochromocytoma. We will study all these in detail. Adrenal glands are endocrine glands located above each kidney in retroperitoneal. These are retroperitoneal organs and supromedial aspect of each kidney. Their weight are of each adrenal gland, and right adrenal gland lies close to inferior vena cava, and left gland is located between kidney and aorta near tail of pancreas. Adrenal gland have okay, can be divided into two, anatomically divided into two regions. One is cortex and other is adrenal medulla. Having embryologically distinct endocrine organs, adrenal medulla is ectodermal in origin and adrenal cortex is mesodermal in origin. Adrenal cortex can be further subdivided into three different layers: zona granulosa, zona fasciculata, and zona reticularis. Zona granulosa secretes aldosterone 0.1 mg per 24 hours. Zona fasciculata secretes glucocorticoids 20 mg total in 24 hours, in which cortisol is 16 to 20 mg per 24, corticosterone 4 mg in 24 hours. Zona reticularis secretes androgens. This is cross-sectional image of adrenal gland, in which we can see cortex covers 80% of area of adrenal gland and medulla 20% of its area. And cortex is further subdivided into um, zona glomerulosa, fasciculata, and reticularis, having the specific secretory products. Medulla will secrete epinephrine and norepinephrine, which we can also call catecholamines. Synthesis of cortical hormones. All the cortical hormones, glucocorticoid, mineralocorticoid, and androgens are produced from the corticosterone and at the end aldosterone. On the other hand, 17-hydroxypregnenolone will produce 17-hydroxyprogesterone, which will produce at the end will produce cortisol. 17-hydroxypregnenolone will produce dehydroepiandrosterone and androsterone. These are androgens and produce secondary sexual characteristics in male child. Corticoadrenal regulation is is through negative feedback mechanism from hypothalamus. When there is a decreased level of plasma cortisol, when there is hypoglycemia or any stress or any pyrogen fever, in all these cases, these all will stimulate hypothalamus in the form of negative feedback. This will increase production of corticotropin releasing hormone. Corticotropin releasing hormone will affect anterior pituitary to increase corticotropin hormone, ACTH. ACTH will further stimulate adrenal glands to secrete glucocorticoids, mineralocorticoids, and androgens. But this when through this mechanism, when there will be increase of plasma glucocorticoid level, it will suppress through negative feedback and decrease corticotropin releasing hormone. Now we will study
about physiology of glucocorticoids and mineralocorticoids. Glucocorticoids are essential for life and these are cortisol नाम से ही corticoids जो कि blood glucose का level increase करेगा इससे related सिर्फ इसी वर्ड से ही हमें याद रह जाएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो ब्लड का ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करेगा उसके लिए it will enhance gluconeogenesis and inhibits peripheral glucose utilization. It will increase protein catabolism, it will increase fatty acid metabolism, and it has its anti-inflammatory action. Glucocorticoids are also required by vascular and bronchial smooth muscles to respond catecholamines. Thus, it will maintain blood pressure. It will stimulate hemopoiesis. These are more functions of cortisol. It will decrease bone formation, increase bone resorption. It will decrease tissue, inhibit inflammatory and immune response, facilitate maturation of fetus. It will maintain cardiac output, increase GFR and water clearance. It will modulate emotional आउट कर देगा तो सारी जो इसकी फिजियोलॉजी है इसी के इर्द गिर्द घूमती रहेगी कि एल्डोस्टेरोन regulates concentration of sodium and potassium. It will it will affect kidneys to conserve sodium and excretes out potassium. It will respond to change in composition of plasma. Aldosterone secretion is also linked to renin and angiotensin system. When angiotensin 2 is increased in blood, aldosterone is also released, and the retention, it will cause sodium retention and thus vasoconstriction and increased blood pressure. ये इनका further एक diagram के जरिए show किया हुआ है कि when there is decreasing blood pressure and sodium ion concentration in blood will secrete enzyme renin. This renin will affect angiotensinogen to convert into angiotensin 1 and angiotensin 1 is converted into angiotensin 2 by angiotensin converting enzyme. Angiotensin 2 will stimulate adrenal cortical cells to secrete aldosterone. This aldosterone will affect to increase aldosterone acts on kidney to conserve sodium ions and water. Thus, blood pressure and sodium ion concentration return towards normal. तो जो एल्डोस्टेरोन को इंक्रीज करने के लिए ना सिर्फ रेनिन एंजियोटेंसिन का इफेक्ट है बल्कि उसके अलावा अगर हाइपोवोलेमिया हो जाता है या सोडियम लेवल ब्लड में कम हो जाता है तो उसकी वजह से भी एल्डोस्टेरोन इंक्रीज हो सकता है एंड्रोजन एंड्रोस्टेनेडियोन एंड डिहाइड्रोएपिएंड्रोस्टेरोन और एक्चुअल एंड्रोजन इनका भी जो प्रीकर्सर था वो कोलेस्ट्रॉल था a small quantity of androgen produced or some of androgen is converted into estrogen by liver and adipose tissue. लेकिन एंड्रोजन पे इंक्रीज या डिक्रीज होने का हमारी एनेस्थीसिया कंसिडरेशन से या एनेस्थेटिक मैनेजमेंट से कोई खास ताल्लुक इसलिए हम इसकी इंक्रीज और डिक्रीज को यहाँ पे डिटेल से स्टडी नहीं करेंगे पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड अब इसमें क्या है एड्रेनल कॉर्टेक्स में हमने दो चीजों को स्टडी करना है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स या तो इनकी ओवर प्रोडक्शन होगी या इनकी अंडर प्रोडक्शन होगी अब जो अंडर प्रोडक्शन है उसमें प्राइमरी एड्रेनल फेलियर जिसको हम एडिशन डिजीज भी कहते हैं इसमें यह है कि जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड सेपरेट और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सेपरेट डिक्रीज नहीं होते
ये मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स की वजह से दोनों इकट्ठे ही डिक्रीज होते हैं। इसी अंडर प्रोडक्शन को एडिसन डिजीज के नाम से हम याद करते हैं। और आगे जो ओवर प्रोडक्शन है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की वजह से जब होगी ओवर प्रोडक्शन तो नहीं वो करता नहीं वीडियो लाओ नहीं इसका फास्ट ओवर होता है। किसी प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉजेज हो सकते हैं। प्राइमरी होगा तो एड्रिनल एडेनोमा और सेकेंडरी होगा तो पिट्यूटरी ये कौन मीटिंग कर रहा है? प्रोडक्शन होगी ओवर उसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम होता है। और जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड को हम कौन सिंड्रोम भी कहते हैं, उसमें भी प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म भी हो सकता है और सेकेंडरी के कॉजेज जो रेनिन एंजियोटेंसिन की वजह से भी मिनरलोकॉर्टिकॉइड इंक्रीज हो रहे हैं। और एड्रिनल मेडुला में जो कैटेकोलामाइंस इंक्रीज होते हैं वो क्रोमोसाइटोमा की वजह से होते हैं। ये एक क्रोमैटिन ट्यूमर्स हैं जो एड्रिनल मेडुला में होंगे और ये एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को इंक्रीज करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में आप इसको ये कह सकते हैं कि एक्सेस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कुशिंग सिंड्रोम या फिर हाइपर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी कह सकते हैं। तो इसको हम दो में क्लासिफाई कर सकते हैं। एसीटीएच डिपेंडेंट एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा था एसीटीएच, या फिर नॉन एसीटीएच डिपेंडेंट। जो एसीटीएच डिपेंडेंट है वो पिट्यूटरी एडेनोमा जो कि एसीटीएच को ज्यादा से ज्यादा सिक्रीट कर रहा है और उसकी वजह से कुशिंग डिजीज हो रही है। या फिर एक्टोपिक एसीटीएच सिंड्रोम जिसमें कार्सिनोइड्स भी आ सकते हैं और स्मॉल लंग कार्सिनोमा भी। नॉन एसीटीएच डिपेंडेंट आर एड्रिनल एडेनोमा, एड्रिनल कार्सिनोमा या याट्रोजेनिक। तो इसका जो डायग्नोसिस है वो ब्लड में एसीटीएच और कॉर्टिसोल के लेवल से हम डायग्नोज कर सकते हैं कि या इसको पिट्यूटरी एडेनोमा है या फिर इसको पिट्यूटरी एडेनोमा नहीं बल्कि एड्रिनल ग्लैंड में एडेनोमा है। इसमें पिट्यूटरी ट्यूमर या अगर एक्टोपिक एसीटीएच होगा तो एसीटीएच तो हाई हो ही रहा है, उसकी वजह से कॉर्टिसोल भी हाई है, दोनों हाई आएंगे। जबकि अगर एड्रिनल ट्यूमर है तो उसकी वजह से एसीटीएच नेगेटिव फीडबैक की वजह से लो रहेगा जबकि कॉर्टिसोल लेवल ब्लड में हाई होगा। अगर हम एक्सोजेनस कॉर्टिसोल दे रहे हैं तो उसकी वजह से कॉर्टिसोल तो हम दे रहे हैं उसको, तो नेगेटिव फीडबैक की वजह से एसीटीएच लो होगा। लेकिन अगर प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन दे रहे हैं तो उसमें कॉर्टिसोल लेवल भी कम होगा और एसीटीएच भी कम होगा। अब कुशिंग सिंड्रोम की प्रेजेंटेशन में एक बड़ी फिगर है। इस फिगर के से रिलेटेड ही हमें कुशिंग सिंड्रोम की सारी बातें याद रह जाती हैं। तो इसमें है कि सडन ऑनसेट वेट गेन, मून फेशियल विद फ्लूइड complexion, hypertension, glucose intolerance, oligomenorrhea, decreased liquidity, spontaneous ecchymosis, muscle weakness, depression, insomnia, buffalo hump, hormone healing, and prone to thromboembolism, increased risk of septicemia. इसके डायग्नोसिस में भी उनके मिडनाइट और 9 AM पर हम कॉर्टिसोल लेवल प्लाज्मा में भी चेक करेंगे और यूरिनरी कॉर्टिसोल लेवल ऑफ 34 आवर्स भी चेक करेंगे। एसीटीएच पे ऐसे जो हम पीछे डायग्नोसिस में पढ़ चुके हैं कि एसीटीएच इंक्रीज होगा तो उसे हम कैसे भी छोटे एडेनोमा या एडेनल एडेनोमा से को डायग्नोज कर सकेंगे। डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट भी हुई है। डेक्सामेथासोन देंगे तो नाइट में देंगे उसकी एक मिनिमम क्वांटिटी, तो उसकी वजह से एसीटीएच सप्रेस होगा और वो आगे से कॉर्टिसोल को डिक्रीज करेगा। तो इसमें फीडबैक प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब है कि पिट्यूटरी एडेनोमा। और अगर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा एसीटीएच के या कॉर्टिसोल लेवल कम नहीं हो रहा तो इट मींस ये एड्रेनल ट्यूमर है। इसके अलावा एड्रेनल ग्लैंड स्कैन से भी इसको कुशिंग सिंड्रोम डायग्नोस हो सकता है। ट्रीटमेंट इसकी ट्रांसफेनॉइडल एक्सेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर एड्रेनलेक्टमी फॉर एड्रेनल कॉर्टेक्स ट्यूमर, पिट्यूटरी इरेडिएशन विद बायलेटरल एड्रेनलेक्टमी।
अब अनेस्थेटिक इम्प्लीकेशंस में होगा कि इसके पेशेंट है मल्टीपल प्रॉब्लम, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, कोरोनरी हार्ट डिजीज है, हाइपरटेंशन, तो और ऑस्टियोपोरोसिस भी है, स्किन प्रोन टू ब्लीडिंग, इजी डैमेज, और इसी के लिए भी स्पेशल हैंडलिंग होनी चाहिए, बी प्रोन टू वाटर ओवरलोड एंड हाइपोनाइट्रेमिया एंड मोसेसिस की वजह से डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होगी। अब इन सब से रिलेटेड हमें अनेस्थेटिक इम्प्लीकेशन मतलब कंसीडर करेंगे, इसका डायबिटिक कंट्रोल, इसका हाइपरटेंशन कंट्रोल, और पोजीशनिंग इसकी केयरफुल पोजीशनिंग होगी ताकि एक्टिमोसिस से भी बचे, और इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर का रिस्क भी होता है। और सबसे अहम, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन के लिए हमारे पास हर चीज अवेलेबल होनी चाहिए और पेशेंट को वाटर ओवरलोड से बचाना है। यही आ गया कंट्रोल हाइपरटेंशन, डायबिटीज, नॉर्मलाइज इंट्रावेस्कुलर, और फिर उसके बाद इसके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस और प्रिपरेशन फॉर डिफिकल्ट एयर। सेडेशन और इंडक्शन एजेंट पर कॉर्टिसोल लेवल का कोई खास इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इटोमिडेट को प्रेफर किया जाता है बिकॉज इट इनहिबिट्स स्टेरॉइड बायोसिंथेसिस। Careful use of relaxants because of skeletal muscle weakness and hypokalemia. Regional anesthesia is also acceptable, and plasma cortisol level decrease promptly after gland excision and this need replacement. अब इसका जो ट्रीटमेंट ऑफ एड्रेनेलेक्टमी है, और अगर एड्रेनेलेक्टमी के दौरान के बाद कॉर्टिसोल लेवल एडवांस डिक्रीज हो जाता है, तो उसके लिए हमें थोड़ी रिप्लेसमेंट की जरूरत है। उसमें हम स्टेरॉइड इन्फ्यूजन कॉर्टिसोल 100 mg पर डे देंगे और फ्लूड्रोकॉर्टिसोल 0.1 mg पर डे। अब आ जाते हैं हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, यानी कि जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड की एक्सेस की तरफ के भी, उसमें क्या पैथोलॉजी है और उसके आगे एनेस्थेटिक कंसिडरेशन क्या है। इसको हम कौन सिंड्रोम भी कहते हैं। प्राइमरीली तो वही है एल्डोस्टेरोन, जो कि एड्रिनल ग्लैंड के ट्यूमर की वजह से इंक्रीज हो रहा है सिक्रीशन एल्डोस्टेरोन की, या फिर इसके साथ भी कोई और ट्यूमर्स मौजूद है, फियोक्रोमोसाइटोमा या हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से, तो उसको हम प्राइमरी कॉज कहेंगे। और सेकेंडरी कोई इंक्रीज प्लाज्मा लेवल्स ऑफ रेनिन या फिर एसोसिएटेड रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन। अब इसके जो साइन सिम्टम्स हैं वो स्पेसिफिक तो नहीं है, लेकिन हाइपरटेंशन जरूर है, हेडेक, हाइपरटेंशन, और उसकी वजह से पीछे रीजन सोडियम रिटेंशन और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि सोडियम रिटेंशन की वजह से इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा, और उस हाइपोकालेमिया के साथ भी होगा। हाइपोकालेमिया होगा पोलियूरिया विदाउट एबिलिटी टू कंसंट्रेट यूरिन, और स्केलेटल मसल क्रैम्प्स और एबनॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस। इसकी ट्रीटमेंट पोटेशियम सप्लीमेंटेशन, जिसके लिए पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स भी यूज कर सकते हैं, जो कि एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पर भी काम करेंगे और पोटेशियम को भी स्पेयर करेंगे, जिसमें दो हैं इंक्लूड स्पाइरोलैक्टोन और ट्रियाम्फिनिन। ये दोनों ज्यादा कॉमन यूज करते हैं। उसके अलावा बाकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी यूज कर सकते हैं। और ये तो उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट होगी। जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो एड्रेनेलेक्टमी ही है, और वो बायलेटरल है if multiple tumors are present. Anesthetic consideration, hyperventilate नहीं करेंगे क्योंकि it will decrease potassium, और may have accelerated hypotensive response on anesthetic agents. उसकी क्योंकि इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम तो इंक्रीज है, लेकिन एक्सेलरेटेड हाइपोटेंशन कॉज कर सकता है, और सडन ब्लड लॉस इसमें काफी ज्यादा चांस होता है। बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन भी कह सकते हैं, वैसे भी इसमें सडन ब्लड लॉस का चांस ज्यादा होता है। तो हमें इसमें जो मॉनिटरिंग है वो बहुत अहम है कि एबीटीज भी मॉनिटर करें, इलेक्ट्रोलाइट्स भी, और इसमें भी मे रिक्वायर स्टेरॉइड्स इफ बायलैटरल एड्रेनेलेक्टमी। अब जो इन दोनों के एक्सेस तो हमने पढ़ ली, जब हम उसमें इनके डेफिसिट में आएंगे कि मिनरल कॉर्टिकॉइड्स को डिक्रीज होने के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, उसकी पैथोलॉजी को पढ़ेंगे।
तो उसमें हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म में कॉन्जेनिटल डेफिशिएंसी ऑफ एल्डोस्टेरोन या फिर ग्रेनिन एंजाइम के डिक्रीज होने की वजह से या फिर एसीई इनहिबिटर के यूज ज्यादा करने की वजह से हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म हो सकती है। इसकी प्रेजेंटेशन है हाइपरकैलेमिया विदाउट रीनल इनसफिशिएंसी, हार्ट ब्लॉक होगा ड्यू टू इंक्रीज पोटेशियम लेकिन रीनल इनसफिशिएंसी नहीं होगी, और पोस्टुरल हाइपोटेंशन और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसकी ट्रीटमेंट, क्योंकि अब हाइपोअल्डोस्टेरोनिज्म है तो सोडियम डिक्रीज हो गया होगा डेफिनेटली, तो इसके लिए लिबरल इनटेक ऑफ सोडियम और डेली फ्लूरोकोर्टिसोन। हाइपोएड्रेनोकॉर्टिसिज्म यानी कि इसमें अब दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कॉर्टिसोल भी एल्डोस्टेरोन बोथ डिक्रीज ड्यू टू प्राइमरी एड्रेनल insufficiency and its cause may be cortex destruction. Secondly, because of panhypopituitarism, including ACTH deficiency, no cortisol, एंड नॉर्मल एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन। अच्छा, इसमें जो अहम बात है ये कि जो अगर सेकेंडरी कॉज होगा ना कि अगर एसीटीएच के डिक्रीज होने की वजह से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कम हुए तो एल्डोस्टेरोन की नॉर्मल सिक्रेशन कंटिन्यू रह सकती है। prolonged exogenous administration of steroids suppress pituitary adrenal axis and final इसमें deficiency of ACTH। हाइपोएड्रेनोकॉर्टिसिज्म को हम एडिसन्स डिजीज भी कहते हैं। इसमें कॉर्टिसोल लेवल डिक्रीज होता है हेमरेज की वजह से, कैंसर की वजह से, ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से या वैसे सिंपल डिस्ट्रक्शन की वजह से। अब एडिसन्स डिजीज की प्रेजेंटेशन है कि ये मसल वीकनेस, फटीग, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, नाउसिया, हाइपोटेंशन, एब्डोमिनल और बैक पेन की इसकी प्रेजेंटेशन है, और हाइपर पिगमेंटेशन। डायग्नोसिस इसका कॉर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल प्लाज्मा और यूरिन में डिक्रीज जाता है, और एसीटीएच स्टिमुलेशन। तो नॉर्मल पेशेंट में अगर एसीटीएच को इसकी वजह से स्टिमुलेट किया जाए तो उससे 1 आवर के अंदर अंदर प्लाज्मा कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो जाता है, और अगर वो इंक्रीज ना हो दैट मींस देयर मे बी एडिशंस डिजीज। और इसके अलावा प्लाज्मा का एसीटीएच लेवल एलिवेटेड विद प्राइमरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी एंड रिड्यूस्ड विद डिसफंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी और इनहिबिशन ऑफ पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सेस। अब एडिसन्स डिजीज में जो है जब ये पेशेंट अब स्ट्रेस में जाएगा तो स्ट्रेस का वो रिस्पांस जो हमें एल्डोस्टेरोन के इंक्रीज होने से मिलता था, जिसमें वो अब एल्डोस्टेरोन के डिक्रीज होने की वजह से वो हमें रिस्पांस नहीं मिला। तो एक जो बॉडी में क्राइसिस आएगा वो किस तरह से प्रेजेंट होगा, प्रेजेंटेशन ड्यू टू स्ट्रेस, सर्जरी, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, एडिसोनियन क्राइसिस। इसमें फीवर, नाउसिया, वोमिटिंग, हाइपोनाट्रेमिया होगा, हाइपरकालेमिया होगा और हाइपोग्लाइसेमिया होगा, यानी कि दोनों के फंक्शन कम हुए हैं तो उसकी उससे रिलेटेड तमाम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और हाइपोग्लाइसेमिया, इन सब की वजह से जो सर्कुलेटरी कोलैप्स होगा और पेशेंट शॉक में जाएगा, वो रेजिस्टेंट होता है रिसस्सिटेशन से। तो इसलिए एडिसोनियन क्राइसिस को प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। इसकी ट्रीटमेंट में आ जाता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम हुए थे तो आईवी कॉर्टिसोल देंगे, नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज, कोलॉइड, ब्लड, आईवी फ्लूइड को आईवी फ्लूइड देंगे ताकि उसका जो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम हुआ है उसको हम शॉक में रिकवर कर सकें। एंड क्रोनिक रिप्लेसमेंट थेरेपी यही है, कॉर्टिसोन और फ्लूरोकॉर्टिसोन, कॉर्टिसोन फॉर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड फ्लूरोकॉर्टिसोन इन प्लेस ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और उसके बाद हाइपरटेंशन को अगर हो जाता है उसे ट्रीट करेंगे, हाइपोकैलेमिया। अनेस्थेटिक कंसीडरेशंस हमारी होंगी ब्लड शुगर, इलेक्ट्रोलाइट लेवल को कंट्रोल करना, एटॉमिक रेट को अवॉइड करेंगे क्योंकि इट विल डिक्रीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेवल। ऑलरेडी ही कम है पेशेंट में तो हम एटॉमिक रेट को अवॉइड करेंगे। इन्वेसिव मॉनिटरिंग, ए लाइन, सीवीपी
neuromuscular block monitoring and reduce doses of muscle relaxant. Regional anesthesia is also acceptable, but be careful for back pain. अब कंपैरेटिव स्टेरॉइड पोटेंसी है ऑन द ये हम जो डेली बेसिस पर कुछ स्टेरॉइड्स देते हैं पेशेंट को, उनका इफेक्ट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड पर किस तरह से होता है। तो वो एक छोटे से ग्राफ में उन्होंने एमजी की डोज की बेस पर दिया हुआ है कि अगर हम हाइड्रोकॉर्टिसोन देते हैं तो उसका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड इक्वल इफेक्ट है, और प्रेडनिसोलोन का और मिथाइल प्रेडनिसोलोन का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का इफेक्ट काफी ज्यादा है। डेक्सामेथासोन का भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट ज्यादा है बनिस्बत मिनरलोकॉर्टिकॉइड के, जबकि फ्लूटोकॉर्टिसोन का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट 0 है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट ज्यादा है। Perioperative glucocorticoid replacement. Perioperative stress is related to degree of trauma and depth of anesthesia. Acute adrenal insufficiency occurs only rarely but can be life-threatening. तो वही हम एड्रेनल इंसफिशिएंसी जो हम पीछे एडिसोनियन क्राइसिस में हम पढ़ चुके हैं कि उसका जो शॉक होता है वो रिफ्रैक्टिव होता है रिसस्किटेशन से, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इसलिए एड्रेनल इंसफिशिएंसी के किसी भी किस्म के केस से बचने के लिए तो अगर हम पहले स्टीरॉइड कवर दे दें पेशेंट को तो उसका रिस्क ज्यादा नहीं है। देयर इज लिटिल रिस्क इन गिविंग दिस पेशेंट स्टीरॉइड कवरेज इक्विवेलेंट टू 100 mg ऑफ हाइड्रोकॉर्टिसोन पेरिऑपरेटिवली। ये सिंपल गाइडलाइंस हैं कि अगर इस माइनर सर्जरी के स्ट्रेस में कितनी डोज देनी चाहिए और मेजर सर्जरी में या क्रिटिकल इलनेस में कितनी डोज देनी चाहिए अगर एड्रेनल सप्लीमेंटेशन थेरेपी के लिए। Corticoid supplementation. Topical application of steroids, even without use of occlusive dressing, can suppress normal adrenal response for as long as 9 months to 1 year. Provide supplementation for any patient who has received steroids within a year. For major surgery, hydrocortisone 200 mg per day. For minor surgery, hydrocortisone 100 mg per day, and decrease dose by 25% per day till oral intake. आईसीयू केयर मैनेजमेंट में है कि पेशेंट विद पेरिथ्रोकॉप्टेनिया, टीबी, एचआईवी, सेप्सिस may develop adrenal insufficiency. हाइपोटेंशन यानी कि वो एकदम से कोई टीबी पेशेंट भी एकदम से शॉक में चले जाते हैं और कुछ समझ नहीं आती कि एडवांस हुआ क्या, और सेप्सिस के पेशेंट तो फिर वो तो वैसे ही शॉक में जाते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि एचआईवी और टीबी के पेशेंट ऐसे शॉक में जाते हैं कि वो रिफ्रैक्टिव हो जाता है और पीछे कॉज एड्रेनल इनसफिशिएंसी भी हो सकती है। और आईसीयू में जो इस तरह के एड्रेनल ग्लैंड्स डिक्रीज होने वाले पेशेंट उनमें हाइपोटेंशन भी हो सकता है, हाइपोनाइट्रेमिया, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरकैलेमिया भी होता है। हाइपोटेंशन रिफ्रैक्टेड टू फ्लूइड्स, चेक कोर्टिसोल लेवल्स एंड ट्रीटमेंट हाइड्रोकॉर्टिसोन। अब हम सबसे अहम टॉपिक जो है इसका एड्रेनल ग्लैंड का वो स्टार्ट करेंगे। फेओक्रोमोसाइटोमा, reticulocyte secreting tumors that arise from chromatin cells of the adrenal medulla. It secretes excessive amount of adrenaline and noradrenaline. 80% occur during lateral. तो फेओक्रोमोसाइटोमा के लिए रूल है 10 का, ये वैसे उन्होंने याद करने के लिए छोटे से नेमोनिक्स बनाए हुए होते हैं। 10% एक्स्ट्रा एड्रेनल होता है, यानी कि 90% जो है इसका जो ट्यूमर है वो एड्रेनल मेडुल्ला में होगा और वही सीक्रेट करेगा और इंक्रीज करेगा। 10% अकर इन चिल्ड्रन, 10% फैमिलियल क्लोजर टू 10% फैमिलियल होगा, 10% बायलैटरल है, 10% रिएक्टर होता है, 10% मैलिग्नेंट। और इसके बाद नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का जो मेटाबोलाइज होके नॉरमेटानेफ्रिन और मेटानेफ्रिन बनाते हैं रिस्पेक्टिवली, और इनका जो एंड प्रोडक्ट है वो फिनाइल मेंडेलिक एसिड है ब्लड में, जो हम इसको ब्लड में चेक कर सकते हैं प्लाज्मा में।
फियोक्रोमोसाइटोमा के साइंस और सिम्टम्स में सबसे अहम जो है वो क्लासिकल ट्रायड है। हाइपरटेंशन की वजह से हेडेक होगा, रेस्पिरेशन और पैल्पिटेशन। इसको आप यूं सोच लें कि दिमाग में कि अगर ये एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन दोनों, यानी कि जो हम एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन कॉमन नेम के साथ इस्तेमाल करते हैं, उससे इसके अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स पर जो जो इफेक्ट्स पड़ते हैं वही इसके साइन और सिम्टम्स के तौर पर नजर आएंगे। यानी टैकीकार्डिया होगा जिसकी वजह से पैल्पिटेशन आएगी, हाइपरटेंशन होगा जिसकी वजह से हेडेक भी होगा और प्रेस्पिरेशन भी होगी। पेन, प्रेस्पिरेशन और पैल्पिटेशन, ये इन तीन साइंस का जो क्लासिकल ट्रायड है जो कि फियोक्रोमोसाइटोमा को डायग्नोस करने में हेल्प करता है। उसके अलावा हाइपरटेंशन, पैलर और पैरोक्सिज्म, ये इसके साइंस और सिम्टम्स के लिए बनाया हुआ है। और सबसे अहम पैरोक्सिज्मल होगा एपिसोडिक, यानी कि इसको एपिसोड होंगे। अच्छा, अब हाइपरटेंशन और प्रेस्पिरेशन पैल्पिटेशन की वजह से जो जो कॉम्प्लिकेशन कार्डियक और न्यूरोलॉजिकल हो सकती हैं, तो वो हम एक नजर में देख लेते हैं कि साइनस टैकी होगा, एसवीटी हो सकता है, पीवीसीज हो सकती है, बीटी हो सकता है, एंजाइना और एमआई के चांसेस बढ़ जाते हैं, कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर और साइनस नोड डिसफंक्शन भी हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल में हाइपरटेंसिव एनकेफेलोपैथी, स्ट्रोक एंड इंट्रासेरेब्रल ब्लीड भी हो सकता है। डायग्नोज हम बायोकेमिकल यानी कि ब्लड और ब्लड प्लाज्मा और यूरिन में इसका कैटेकोलामाइंस का इंक्रीज होने को चेक करेंगे, और लोकलाइजेशन में हम इसको रेडियोलॉजी के थ्रू चेक करेंगे जो कि ट्यूमर्स कहाँ पर मौजूद हैं। ये है 24 आवर यूरिन कलेक्शन में, इसमें कैटेकोलामाइंस 2 फोल्ड इंक्रीज होंगे, 24 आवर्स में टोटल मेटानेफ्रिन भी इंक्रीज होंगे, और विनाइल मैंडेलिक एसिड को भी चेक करेंगे तो वो भी इंक्रीज होंगे। ब्लड एनालिसिस में भी मेटानेफ्रिन, नॉर मेटानेफ्रिन, कैटेकोलामाइंस अपने नॉर्मल लेवल से इंक्रीज होंगे। क्लोनिटिन सप्रेशन या ग्लूकागोन स्टिमुलेशन टेस्ट से भी हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। अब यूरिन एनालिसिस इज यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट एंड ब्लड एनालिसिस इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट। जो लोकलाइजेशन हम कह रहे थे इमेजिंग, वो उसमें रेडियोलॉजी में सीटी स्कैन से या एमआरआई से, जिसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, स्पेसिफिसिटी कम है, और मेटा योडो बेंजाइल क्वालिटीन स्कैन से और पीईटी स्कैन से भी हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट, वही मेडिकल जो उसको हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीट करते रहेंगे। सर्जिकल है डेफिनेटिव, जिसमें एक्सिशन ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा इसकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। अब हम अपनी अनेस्थेटिक कंसीडरेशंस की तरफ आते हैं। तो प्री ऑपरेटिव इसकी जो मैनेजमेंट है उसमें है ऑल पेशेंट्स विद बायोकेमिकली पॉजिटिव फियोक्रोमोसाइटोमा should receive appropriate pre-operative medical management to block the effect of released catecholamine। मेन गोल हमारा क्या है, हमने इसका नॉर्मल बीपी रखना है, उसके लिए एंटी हाइपरटेंसिव और अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स देंगे, और उसके अलावा हमने एक वॉल्यूम डिप्लेशन रिस्टोर करना है। और थर्ड अहम चीज, मेन गोल, प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम सर्जरी इंड्यूस्ड कैटेकोलामाइन स्टॉर्म्स। इससे भी हमने इसको वो करना है, बचाना है। इसमें अब प्री एनेस्थेटिक असेसमेंट में हिस्ट्री वेरीफाई करेंगे, हाइपरटेंशन कितना है, हाइपरटेंशन के लिए कौन सी ड्रग्स पहले से ले रहा है, कितने अरसे से ले रहा है, और उससे हाइपरटेंशन कंट्रोल है कि नहीं है, अल्फा ब्लॉकर्स ले रहा है नहीं ले रहा, कोई ऑर्गन डैमेज हो चुका है या नहीं। कार्डियक एवेल्युएशन बहुत अहम और जरूरी है, उसमें ईसीजी, एक्सरे, इकोकार्डियोग्राफी और रीनल फंक्शन भी चेक करने हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन के बाद जो हाइपरटेंशन की अगली फर्दर कॉम्प्लिकेशंस है उन तमाम को हम चेक करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को देखना पड़ेगा। अब जो इंट्राऑपरेटिव हमें कंसीडर क्या करना है कि
क्या क्या चीजें इसमें अहम हो जो हमें पता होनी चाहिए। एडमिनिस्टर एंजियोलाइटिक्स, ए लाइन, सीवीपी लाइन, क्योंकि इसका फ्लूइड लेवल को चेक करने के लिए, ए लाइन क्योंकि इसका जो पेशेंट का बीपी है वो इंक्रीज और डिक्रीज बहुत तेजी से हो सकता है। सीवीपी कैथेटर और एंटी हाइपरटेंसिव हमारे पास रेटिंग हो, अल्फा ब्लॉकर्स भी, बीटा ब्लॉकर्स भी, और हाइपोटेंशन और हाइपोग्लाइसेमिया को मॉनिटर करना है, आरबीएस भी चेक हो, एबीजीज भी चेक हो, और प्री मेडिकेशन करेंगे पेशेंट को, सिडेशन, एंसियोलाइसिस, एश्योरेंस एंड प्रिवेंट मार्क्ड हेमोडायनामिक चेंजेस इंट्राऑपरेटिव। बेंजोडायजेपाइन दे सकते हैं प्री मेडिकेशन के तौर पे। ओपियोइड से भी इंडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ओपियोइड्स वैसे तो कार्डियो प्रोटेक्टिव होगा, लेकिन यहाँ पर कैन प्रोवोक कैटेकोलामाइन रिलीज, और phenoxybenzamine is alpha blocker should be withdrawn 24 to 48 hours prior to surgery, which was most frequently prescribed for pre-operative use. जो अल्फा ब्लॉकर है वो काफी सारी गाइडलाइंस में है कि उसको हम 2 वीक पहले से उसको स्टार्ट कर देंगे in order to optimize the patient. Last dose of alpha adrenergic blocker to be given at night prior to surgery. जनरल एनेस्थीसिया को भी कंसीडर कर सकते हैं, रीजनल एनेस्थीसिया भी, और प्रेफरेबल ये है कि कंबाइंड रीजनल एंड जनरल एनेस्थीसिया हो. Here although regional anesthesia protects against stresses of surgery, but it cannot prevent catecholamine surgery due to tumor manipulation. Intraoperative है कि close communication between surgeon and anesthetist for the success of intraoperative management. Teamwork is important. Patient to be shifted cautiously. ECG, pulse, CVP, or in patients with preoperative cardiovascular compromise or severe LV dysfunction के लिए हो तो उसमें PA catheter भी. एपिड्यूरल अगर हम इसको कंबाइन करने हैं रीजनल और जनरल, तो उसमें एपिड्यूरल कैथेटर बिफोर एंड आफ्टर GA at mid T9 or low T12 thoracic level. Induction should be smooth, important for laryngoscopy and tracheal intubation. उसमें हमें सिंपैथेटिक स्टिमुलस से बचने के लिए इसको लिग्नोकेन भी देंगे, और टैकीकार्डिया से बचने के लिए एस्मोलोल दे सकते हैं. लैरिंजोस्कोपी में कैटेकोलामाइन लेवल इंक्रीज हो सकता है, प्री ऑक्सीजनेशन जरूरी है. ओपियोइड्स दे सकते हैं लेकिन ये हिस्टामिन भी रिलीज करते हैं और कैटेकोलामाइन इंक्रीज भी कर सकते हैं, इसलिए कॉशियसली देना है. इंडक्शन एजेंट्स तमाम दे सकते हैं, लेकिन थायोपेंटोन जो है वो हिस्टामिन रिलीज करता है, और उसके अलावा प्रोपोफोल, टोमिडेट, मिडासोलाम दे सकते हैं. मसल रिलैक्सेंट में अहम जो चीजें इसमें याद करने के, जिसके एमसीक्यूज काफी ज्यादा आते हैं कि इसमें हमें सक्स अवॉइड करना है, क्योंकि ये फेसिकुलेशन कॉज करेगा और इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से ट्यूमर से कैटेकोलामाइन रिलीज इंक्रीज हो जाएगा इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर की वजह से. तो और उसके अलावा जो एट्रोकोरियम और विवाकोरियम है वो हिस्टामिन रिलीज की वजह से हम नहीं देंगे. तो इसमें जो सबसे अहम जो दे सकते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा के पेशेंट में, वो बेकुरोनियम और रोकुरोनियम एंड सिस एट्राकोरियम, ये 3 सुइटेबल मसल रिलैक्सेंट है. मॉनिटरिंग हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बहुत अहम है. उसमें ECG, पल्स ऑक्सीमेट्री, इन्वेसिव BP, CVP, यूरिन आउटपुट टेम्परेचर, एंड टाइडल, PA कैथेटर, ब्लड शुगर, ABGs. पेरी ऑपरेटिव अगर कैटेकोलामाइन्स का रिलीज ज्यादा हो तो उसमें क्या है, मैनिपुलेशन ऑफ ट्यूमर के दौरान इंक्रीज हो सकता है. तो हमारे पास वेजोडाइलेटर्स मौजूद होने चाहिए इंट्रा ऑपरेटिवली. उसमें है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो कि पोटेंट एट्रियोवेनोडाइलेटर है, रैपिड इन ऑनसेट है और ब्रीफ एक्शन है. इसकी जो सबसे अहम साइड इफेक्ट है वो साइनाइड टॉक्सिसिटी है, लेकिन वो अनकॉमन है अगर हम स्मॉल क्वांटिटी के साथ यूज करें, तो उसकी क्वांटिटी भी हमें मिनिमम रखनी जरूरी है. नाइट्रोग्लाइसरीन
भी हमारे पास मौजूद होना चाहिए इंट्राऑपरेटिवली। और ये भी रैपिड एक्टिंग है, लार्ज डोजेस भी रिक्वायर्ड हो सकती हैं। अल्फा एड्रेनर्जिक एंटेगोनिस्ट, तो जो हम पहले से जिक्र कर रहे थे कि पेंटोलामाइन कॉम्पिटिटिव अल्फा 1 जो कि वीक अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट एज इन्फ्यूजन हम यूज कर सकते हैं। अगर इसका टैकीकार्डिया, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स भी हमारे पास मौजूद होना चाहिए। अगर टैकीकार्डिया या टैकीआरिथमियाज होते हैं उसमें एस्मोलोल का इन्फ्यूजन ये प्रेफरेबल है, रैपिडली टाइट्रेट होता है एंड यूनिकली सुइटेबल है। बोलसिस इसमें दे सकते हैं मेटोप्रोलोल, लाबेटालोल और अटेनोलोल, कोई भी बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। एस्मोलोल को प्रेफर करते हैं। उसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी यूज कर सकते हैं। इट विल रिड्यूस प्रीलोड एंड लेस पोटेंशियल ऑफ ओवरशूट हाइपोटेंशन, नो रिबाउंड हाइपरटेंशन। इसमें जो निकार्डिपिन है उसको प्रेफर किया हुआ है। या फिर एक और डोपा-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट भी यूज कर सकते हैं। ये भी पेरिफेरल वेजोडाइलेशन कॉज करते हैं और इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो करते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट भी कैटेकोलामाइन रिलीज डिक्रीज करता है और मॉडिफाई करता है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर रिस्पांस को। इसकी जो भी लोडिंग डोज भी हम दे सकते हैं 40 to 60 mg पर केजी और उसके बाद 1 to 2 ग्राम्स पर और, लेकिन उसमें टारगेट ब्लड लेवल नॉर्मल रहना चाहिए। और जो मैग्नीशियम सल्फेट के जो साइड इफेक्ट्स हैं तीनों, जो हाइपोरिफ्लेक्सिया कॉज करेगा या ओलिग्यूरिया कॉज करेगा, उसको भी हमने मॉनिटर करना होगा। प्रेग्नेंट पेशेंट्स में भी मैग्नीशियम सल्फेट यूज कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव, इसमें हम ये कैप्रोमोसाइटोमा का केस कराते हुए हमने एचडीयू में पेशेंट के लिए बेड भी अरेंज रख सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को बाद में हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन के कंट्रोल की जरूरत पड़ सकती है, तो उसमें ये शिफ्ट टू आईसीयू या एचडीयू भी है। रिवर्सल डिपेंड्स अपॉन प्री ऑपरेटिव स्टेट एंड इंट्राऑपरेटिव कोर्स। नियोस्टिकमिन और ग्लाइकोपाइरोलेट के साथ करेंगे, क्योंकि अगर कोई एट्रोपिन का हमने कोई भी कॉम्बिनेशन यूज किया तो टैकीकार्डिया हो सकता है और उसके साथ फिर हाइपरटेंसिव स्पाइक भी आएगी। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में हाइपरटेंशन है 50% पेशेंट में। इसका पीछे कॉजेज में ये है कि रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया है, उसमें हाइपरटेंशन होता है अक्सर पेशेंट्स को, या फिर पेन है, या फिर अभी तक परसिस्ट कर रहा है कैटेकोलामाइन लेवल जो ब्लड में है, या फिर कोई रेजिडुअल ट्यूमर है। उसके अलावा अगर फेओक्रोमोसाइटोमा हमने वो एक्सरसाइज कर लिया है, उसके बाद उसको हाइपोटेंशन हो रही है, तो सप्रेशन ऑफ उसके पीछे जो कॉजेज हैं, कॉन्ट्रालैटरल एड्रेनल ग्लैंड की सप्रेशन हो रही है, या प्री ऑपरेटिव इफेक्ट परसिस्ट कर रहा है, जो हमने ब्लॉकर्स देते रहे हैं, एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स देते रहे हैं 2 वीक या नाइट पे भी उसका इफेक्ट आ रहा है, या फिर इंट्राएब्डोमिनल ब्लीड हो रहा है, ये भी एक हाई इंडेक्स है सस्पिशन। फातिमा को लेने जी, थैंक यू डॉक्टर राफिया। बड़ी डिटेल, असल में टॉपिक बहुत लंबा था, काफी सारे डिसऑर्डर थे, तो बड़ी आपने कम्प्रीहेंसिवली इसको कवर किया। तो अभी इस पे किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। जी अरसलान, आ रही है आपको भी आवाज? जी सर, आवाज आ रही है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी कम्प्रिहेंसिवली समराइज भी किया है, और जो बल्कि मैंने सिनेरियो बनाया हुआ था उसके सारे आंसर्स ऑलमोस्ट लास्ट फ्यू स्लाइड्स में दे दिए हैं डॉक्टर राफिया ने। हाँ बिल्कुल ऐसे। चलें, किसी के क्वेश्चन हो तो कर लें बात। जिसने क्वेश्चन करना हो हैंड रेज करे, अदरवाइज अपना माइक म्यूट रखें, और जिसने क्वेश्चन करना वो ही अपना ऑन कर लें। सही लगा। जी सर। देखते हैं जी, कोई क्वेश्चन आते हैं तो। ओके सर।
मेरी आवाज आ रही थी क्योंकि मुझे तो इधर से आवाज सही नहीं आ रही थी, मैंने कहा शायद आवाज ही ना आ रही हो। नहीं ठीक है, आवाज आ रही थी आपको राफिया। ओके सर। तो ये एक सिनेरियो बनाया था अरसलान ने, मैं शेयर कर देता हूँ। ये नजर आ रहा है जी आपको? जी से शेयर हो रहा था पहले, अब फिर वो आपने शायद बंद कर दिया। जी जी, ये देख लें इसमें। जी सर, आ रहा है। इसको सामने रख के अगर किसी का क्वेश्चन हो तो उस पर भी बात कर लेते हैं। अरे सर, मेरा अपना एक क्वेश्चन है कि बहुत जगह लिखा होता है कि जो हिस्टामिन रिलीजिंग ड्रग्स हैं वो ऐसे सिनेरियो में अवॉइड करनी चाहिए फियोक्रोमोसाइटोमा में, कि वो हाइपरटेंशन करेंगे जो भी। तो अगर हमारे पास एट्राक्यूरम के अलावा कोई ऑप्शन ही ना हो तो हमें फिर ऐसे सिनेरियो में क्या करना चाहिए? सपोज सिस्कोन नहीं अवेलेबल। उसमें जो है ना, वैसे जो प्रैक्टिस, अगर इस तरह की सिचुएशन में हम फंस जाए तो ये अपनी टिप्स हैं, हर बंदा खुद से डेवलप करता है इस सिनेरियो को। तो उसमें एक तो ये कि स्लो दे, उससे थोड़ा सा वो इफेक्ट कम आता है। इंडक्शन के लिए यूज ना करें, उसके लिए थोड़ी हैवी डोज चाहिए होती है। तो उसके बाद जो है ना, आप एंटी हिस्टामिन यूज कर लें, एवल यूज कर लें। सही, ठीक। यानी कि मेन आपका कंसर्न हिस्टामिन रिलीज ही है ना, तो आप एंटी हिस्टामिन यूज कर लें, उससे कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। सही, ठीक सर, ठीक। सर ये इसमें विच एनेस्थेटिक एजेंट भी स्पेसिफिकली अवॉइडेड, इसमें केटामीन ही इसका आंसर होगा ना? जी अरसलान। जी, इसमें केटामीन भी है, वही बात जो मैं कर रहा था कि एट्राक्यूरम भी बहुत जगह लिखा हुआ है कि आप जो हिस्टामिन रिलीजिंग ड्रग्स हैं वो भी अवॉइड करें। फिर सक्सिनाइल के बारे में भी लिखा हुआ था कि वो भी जो फेसिकुलेशन काज करता है ना, तो इट माइट आल्सो रिलीज सम कैटेकोलामाइन, तो इस चीजों को भी अवॉइड कर लिखा हुआ है इसके बारे में। हाँ जी, केटामीन, ये जो सक्सिनाइल है ना, ये बड़ा ट्रिकी पॉइंट है, क्योंकि जब वो एब्डोमिनल फेसिकुलेशन होती है तो उस पे अजम्पशन ये है कि एड्रेनल जो है वो स्टिमुलेशन होती है मैनुअली, तो उससे जो है उसके साथ फिर अगर आपके पास हिस्टामिन रिलीजिंग है तो उसका तरीका ये है कि आप पहले एंटी हिस्टामिन दे लें, उससे इफेक्ट कुछ मिनिमाइज हो जाता है। सर डेस्फ्लोरेन मोर देन 6 मैक वो भी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करवाता है, वो भी अवॉइड करेंगे। जी बिल्कुल। सर अगर ऐसा पेशेंट फॉर फियोक्रोमोसाइटोमा का किसी और इमरजेंसी सर्जरी के लिए आ जाता है सपोज, तो उसमें हमें कट ऑफ वैल्यू बीपी की, इन चीजों को मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? वही रूटीन में जो प्रैक्टिस है हाइपरटेंशन वाली, वही, या कोई खास चीज इसमें भी हमें कर सकते हैं?
देखें उसमें आपने जो है ना मैनेजमेंट और यानी कि हाइपरटेंशन मैनेजमेंट और एनेस्थीसिया मैनेजमेंट इसको इकट्ठे ही करना है कि आपने एनेस्थेटाइज भी कर देना है और मीनवाइल आप उसकी जो है ना हाइपरटेंशन मैनेजमेंट भी करेंगे। तो उसमें प्रिंसिपल वही है कि आप अल्फा ब्लॉक कर दें और फिर बीटा ब्लॉक कर दें, तो इनसे आप जो है वो कर लें कंट्रोल। वेजोडाइलेटर भी यूज कर सकते हैं उसमें। अल्फा ब्लॉकर इटसेल्फ आपको वेजोडाइलेटेशन दे देते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। जी मेरे ख्याल में और है किसी के क्वेश्चन तो करें बात। नहीं फिर फ्री यहाँ पे एंड कर दें। जी सर, मैं हमने और क्वेश्चन तो किसी का नहीं है। हाँ, नेक्स्ट एंडोक्राइन में कौन सा डिसऑर्डर रह गया? थायराइड कर लिया और डायबिटीज भी हो गया। डायबिटीज हेपेटिक वाला भी हो डायबिटीज गया। हो गया जी सर, हेपेटिक भी हो गया। हाँ जी, और क्या रह गया? इसमें हमने थायराइड भी कर लिया है, ये एड्रिनल हो गया और ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया। अच्छा तो कोई नेक्स्ट फिर इसमें कार्सिनोइड देख रहता लेते है हैं इसमें, इस मॉड्यूल में पता और नहीं। क्या है। हाँ उसमें ईएनटी और ऑफ्थल्मोलॉजी है, उसको फिर नेक्स्ट ऐड कर ले। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। 11 बज गए हैं तो यहीं पे हम इसको एंड करते हैं। एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन बाय डॉक्टर आफिया, इसको मैं अभी लोड कर दूंगा। आप लोग मजीद देखना चाहेंगे तो वो भी अवेलेबल हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।